Everyone is doing well. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. But we are doing this chapter, Living World. I hope everyone is clear with the topics. So I'm trying to cover up all the parts from NCERT as well as from extra books. Try to make your notes also with it. Any doubt, any query, just let me know in between, okay? So we have started with taxonomical hierarchy in the last class, right? Yes, ma'am. Yes. So Yes, ma'am. yes, so we started with this taxonomic hierarchy. Taxonomical hierarchy, I told you in the last class only that it is the first is kingdom. It is the largest and most diverse group. Kingdom के बाद आपने पढ़ा था phylum, phylum in the case of plants and division in case of phylum in case of animals and division in case of plants. Then was class, then order, then family, genus, and species. So which is the basic unit? Which is the last one? Species. Species. So species is considered as the basic unit of classification. Yes, basic unit of classification is species. तो 1 marker की question यही आता है. तो 1 marker question में यही what is the basic unit of classification? It is species. अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे मेरी बात तो आप लोगों को ये टॉपिक लर्न भी हो जाएगा अभी के अभी. इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड आई विल गिव यू अ ट्रिक टू लर्न दिस. तो मैंने आपको बताया इट इज द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स ग्रुप. यस, सबसे ज्यादा फैला हुआ है डाइवर्स और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? किंगडम. एंड देयर आर 2 किंगडम्स, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे. पता है सभी को? तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड अगर किसी को याद हो तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताया था, लीनियस, कार्लस लीनियस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड हिज नेम? प्लीज रेज योर हैंड, बी क्विक. कार्लस लीनियस. ओके, सौम्या, फनीशा, तन्वीर, नवरीत, किरण, पाहुल, सुखमन, आदित्य, Kashish, got it. Very good, everyone. Okay. Aryan, we are doing this with a topic. Taxonomical hierarchy. We discussed this topic in the last class only. Taxonomical hierarchy, याद है सभी को? Taxonomical hierarchy is arranging of animals and plants into groups. तो इसमें जो सबसे पहले basic topic था, that was, just hold for a second. Just wait for a second, class.
information मेरे को क्लास से करना क्योंकि मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ मैं कुछ नहीं बोला everyone. I'm sorry, there was some issue. Okay, but we were doing this taxonomical hierarchy, and I was telling you that there is some easy way of learning it. So, taxonomy term was given by Carlos Linnaeus. I was asking you all about Carlos Linnaeus. He's also known as father of taxonomy. तो अगर आप concept of classification also किसी ने फर्स्ट लेक्चर लगाया तो उसको याद होगा कि he is known as father of taxonomy. He is also known as father of classification. So he gave two system of classification, concept of two kingdom system, और जिसमें उसने बताया कि there are only two kingdoms, animal kingdom and plant kingdom. और अगर आप लोगों को पता हो कि बैक्टीरिया जो है, फंगस जो फंजाई है, वायरसेस हैं, they neither belong to animals nor to plants. So this was a drawback in his classification system. He gave this concept of classification. Who gave this concept? Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus. So Carlos Linnaeus is also known as father of taxonomy, father of classification system. He was the first one to give two kingdom system classification. और two kingdom system classification में उसने animal kingdom और plant kingdom, फिर उसके बाद phylum in case of animals and division in case of plants, फिर class, फिर उसके बाद order, then family, then genus, and then species. Basic unit is species, or most diverse and largest group is kingdom. अब आप लोग terms learn करोगे. I'll explain side by side. सबसे पहली term आती है species. Species के लिए 1 marker question आता है, which is the basic unit of classification. I'll make you write down also. Just आपने सुनना है पहले. And this is the basic unit of 1 marker question, which is the basic unit of classification. Answer is species. Neat का question आता है, who coined the term species? Term was coined by Kendall. बच्चे father of modern taxonomy is Kendall, father of ancient taxonomies. Okay, और बच्चे term taxonomy was given by Kendall. अगर याद हो ना, मैंने I wrote this line also, that term taxonomy. Got it? Yes, ma'am. Okay. फिर उसके बाद next था term species by John Ray. स्पीशीज की डेफिनेशन अगर आप सुनो तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. जैसे अगर क्लास में बैठे हो या कहीं पे भी हो, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन आल्सो. तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड मतलब मेल एंड फीमेल कैन कॉपुलेट टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. आप सब लिखोगे अभी, पहले सिर्फ समझ लो. So what is the definition of species? Species is group of individuals which can interbreed to produce fertile offspring. Okay. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. So, ma'am, father of taxonomy would be Carlos Linnaeus. So we have to learn Carlos Linnaeus. Yes. Term was given by Kendall. ना अगर आपको याद हो मैंने ये लिखवाया भी था, taxonomy term. मतलब term means ये जो ये definition है, this word is given by, the species definition is given by, term is given by John Ray. Okay. Okay, ma'am. And Linnaeus is father of taxonomy.
ओके फिर उसके बाद देखो अब ये स्पीशीज की डेफिनेशन दिस देयर इन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आपके लिखी हुई डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और इसी में मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, दो ऑर्गेनिजम्स जैसे एक्सेप्शन थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। इसी में एक टर्म आई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के कह रहे हैं कि क्या इसकी स्पीशीज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी है। तो दिस वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, साइंटिस्ट का नाम ये आपको, दिस आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो आप लोगों को याद करने हैं। अर्नस्ट मेयर, he gave this concept of biological concept of species, and he told that a group of related organism which can interbreed to produce fertile offspring. और इनमें exception कौन कौन आएगी? Yes, anyone? What are their exceptions? Unit and Mule, Infertile humans and mule. worker bee. infertile human. Yes. तो इसमें exception क्या क्या है? Mule and Unit. yes, eunuch या फिर Worker bee. yes, या very good everyone. Even high-knees also. अब हाइनीज में देखना जरा ध्यान से, what are high-knees? Again, I told you that I'll be adding different concepts in each class. तो म्यूल में तो सबको ये पता चल गया था, it is a cross between male donkey and female horse. ये साइन मैंने आपको बताए थे ना, this is for sperm and this is for female egg, recipient होते हैं females, तो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी। और अगर उल्टा हो गया कि मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी, ये हाइनीज होते हैं। छोटे छोटे घोड़े देखे हैं जो बच्चे, पोनीज जिनको बोलते हैं, जिन पे बच्चे राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइनीज। गॉट इट? तो म्यूल एंड हाइनीज। Yes, ma'am. ओके, इसी तरह से क्रॉसेस बनाए गए हैं। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? आई विल मेक यू राइट डाउन। इसी तरह से कैप्टिविटी में हम बना सकते हैं टाइगॉन। ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियली किया जाता है कैप्टिविटी में। इट्स अ क्रॉस बिटवीन टाइगर एंड लायन, फीमेल मेल टाइगर एंड फीमेल लायनेस। ऐसे ही एग्जांपल है लाइगर, इट्स बिटवीन मेल लायन एंड फीमेल टाइग्रेस। और इंटरेस्टिंगली जो इनके आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल बी फर्टाइल। और ये अजीब सी चीज है ना कैप्टिविटी में, दिस इज नॉट नेचुरल प्रोसेस। स्टार्ट विद राइटिंग, everyone please start with the writing part. Their offsprings are fertile. कैप्टिविटी में करवाया गया है। फर्टाइल मींस जो आगे होंगे ऑर्गेनिजम्स, दे विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म एंड दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। बट जो आगे स्पीशीज आएगी वो आगे सरवाइव करेगी कि नहीं, दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। Okay, ma'am. ओके, तो प्लीज स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। टेक्सोनॉमी आप लिख चुके हो। क्या आपने सिस्टमैटिक्स लिखा था लास्ट क्लास में? नो। Yes, ma'am. Systematics by Linnaeus in his book System Nature. Have you written this part? I don't think so. Yes. Ma'am, we wrote the definition Yes, of ma'am. systematics and Okay. then utility and then uses of taxonomy and all that. हाँ हाँ, नहीं अब आप लिख रहे हो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। सिस्टमैटिक्स में क्या मैंने आपको बुक लिखवा दी थी, लीनियस ने जो बुक लिखी थी सिस्टम नेचर? यस? No, ma'am. अच्छा मैम लिखो वो तो फिर। बहुत पहले लिखवा दी थी मैम आपसे। हाँ यस When यस you were यस telling us about the books written by Carlos Linnaeus. तो यस उसमें यस। 5th नंबर पे थी। हाँ हाँ, अभी अभी एक टर्म इन बिटवीन लिखो, सिस्टमैटिक्स लिखो, टर्म लिखो, सिस्टमैटिक्स बाय Linnaeus. Systematics term by Linnaeus in his book System Nature. Ma'am, can you repeat the heading? Systematics
by Linnaeus. Systematics by Linnaeus in his book System Nature. In his book System Nature. अब आप heading लिखोगे taxonomical hierarchy that is given in your on your screen. Just I have written this term on your screen, taxonomic hierarchy. और उसके बाद ये हायरार्की लिख लो एंड आप जो एरोज बनाओगे वो उल्टे होंगे जो मैंने बनाए हैं वो आपको समझाने के लिए थे अदरवाइज these arrows are please draw this एनसीईआरटी में जो बनाया था पहले मैंने वो बनाए हुए लेकिन अभी आप ये बनाओगे किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज स्पीशीज के लिए लिखो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज के लिए लिखो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप लिख रहे हो और समझ रहे हो क्या सबको क्लियर है जो भी नोट डाउन कर रहे हो यस Yes, ma'am. ओके तो इसमें आपने लिखा स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टर्म बाय जॉन रे who will tell me the definition of species anyone from boys or girls tell me the definition of species Ma'am, okay may so I? yes Sukh, yes Ma'am, species refers to a group of individuals who are capable to interbreed to produce fertile offsprings. perfect answer शाबाश तो अगर आप समझ के करोगे बिलीव मी स्पीशीज की डेफिनेशन बच्चों को एंड तक लर्न नहीं होती इवन इन देयर फाइनल एग्जाम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैम ये बीच में इतनी 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 मुश्किल टर्म बोलते हैं लेकिन आपने स्टेप वाइज लर्न की तो आपको लर्न भी हो गई एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गेस यू आर लर्निंग दिस डेफिनेशन एंड यू आर टेलिंग मी द आंसर राइट अवे तो अगर आप समझ के करोगे बिलीव मी इट इज वेरी इजी साइंस इज ऑल अबाउट लर्निंग तो आपको समझ के फिर लर्न करना है तो टर्म बाय स्पीच अब ये लर्न करना पड़ेगा स्पीशीज किसने टर्म दी है जॉन रे तो अब आप लिख लो अपने आप सभी डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can that can interbreed to produce fertile offspring group of individuals that can interbreed to produce fertile offspring नेक्स्ट लाइन में लिख लेना बायोलॉजिकल कंसेप्ट was given by Ernest Mayr biological concept of species by Ernest Mayr biological concept of species by Ernest Mayr अब आप ये लिख लो exceptions I've written them on the screen exceptions लिख लेना
दो हैं एक्सेप्शन, एक नेचुरल में, एक कैप्टिविटी में। ये नेचुरल वाला लिख रहे हो स्क्रीन पे जो लिखा है, एक्सेप्शन मेरे को हाइनी एंड म्यूज। बच्चे लिख लिया नेचुरल में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी मतलब दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज आर्टिफिशियल। कैप्टिविटी में मतलब जहां उनको पकड़ के रखा हुआ है, कैप्टिविटी। सॉरी, टाइगर एंड लाइगर। Ma'am, can you show the previous slide once? ओके, Yes, you can change, ma'am. Thank you. ओके। Ma'am, यस, ma'am, by doing captivity, can we do interbreeding of any नो नो organisms? नो नो, इट इज नॉट फिजिबल बच्चे। हाँ, बस ये कि आर्टिफिशियली इन लैब कंडीशंस यू कैन मेक देम फ्यूज in the test tube or maybe in some other container, but not, it is not natural process. Okay, ma'am. Shall I move to the next topic? Yes, ma'am. Okay, तो अब आप लोगों ने लिख लिया। अब एक टर्म है जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। You all have NCERT, I guess everyone is having NCERT with them. So NCERT में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होगे, फिर अपने आप लर्न भी हो जाएगा। I told you as this concept was given by Linnaeus, he is known as father of taxonomy, he is known as father of classification. तो उसी ने बताया था कि there are only two kingdoms. Yes, anyone? कौन से kingdoms है? Animalia plantae. Kingdom Animalia and Kingdom Plantae. But later on it was found that there are certain other kingdoms. Anyone from boys? Apart from animal or plantae, can you name any other kingdom that was left out? Anyone from boys? Yes? No, no one wants to try. Yes, anyone from girls then? बच्चे उसने apart from animal and plant kingdom, he left out some kingdom. Can you name that kingdom? He was not able to accommodate those organisms like viruses, bacteria. Okay, he was not able to include these organisms into his kingdom of classification. उसने कहा सिर्फ दो kingdoms हैं. Am I audible to everyone? Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Kingdom Animalia. अब अगर मैंने आपको स्पीशीज की डेफिनेशन तो सबको लर्न हो चुकी है. Yes, गुरलीन, am I audible बेटे? गुरलीन? Yes, ma'am. ओके, ठीक है गुरलीन। गुरलीन, इसमें देखो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सिर्फ ये डेफिनेशन मुश्किल थी, बाकी सब डेफिनेशंस इजी हैं। इफ आई से व्हाट इज जीनस? जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। व्हाट इज फैमिली? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। व्हाट इज ऑर्डर? ग्रुप ऑफ रिलेटेड families. What is class? Group of related orders. What is phylum? Group of related classes. What is kingdom? Group of related phylum. Fine. हाँ, तो ये डेफिनेशंस एनसीईआरटी में भी गिवन है, ऐसे ही गिवन है।
देखने में मुश्किल लगता है ये टॉपिक, नहीं ऐसा लगता है कि लर्न ही नहीं होगा कभी भी, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अभी के अभी लर्न हो जाएगा। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज फैमिली, यस एनीवन? ग्रुप ऑफ रिलेटेड, Group of related Genus. genus. Group of related Genus. genus. yes, group of related genus, group of similar genus, group of related genus, group of similar genus, group of similar genera, एक ही बात हो गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी, सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टाइगर। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है, फनीशा ध्यान से सुनना बेटे, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथर जो है, लायन का भी यही होगा जेनरा। आई टोल्ड यू देयर आर ऑलवेज टू नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। तो चाहे आप लॉयन बोल दो चाहे टाइगर बोल दो, दोनों का जीनस सेम होगा। तो मैंने एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बताई, अब मैं जेनरा बता रही हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनस? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। Species. यस, तो 3 स्पीशीज के एक ही। यस, तो देखो इसमें पैंथेरा लियो। लियो से क्या हो गया? क्या किसका है ये नाम? लियो, Lion. यस Lion. यस। नेक्स्ट इज पैंथेरा पार्डस, कौन होगा ये? लेपर्ड। तीनों की क्या सेम है आपको दिख रहा है? जेनरा। तो ये डेफिनेशन भी, हाँ, तो अब सबकी डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अगर मैं स्पीशीज की बात करती, सॉरी जेनरा की बात करती, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ऑल रिलेटेड स्पीशीज हैव कॉमन जेनरा। अब हम आते हैं फैमिली पे। ये सब एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आपको लर्न करनी है एक एक एग्जांपल। तो लेट्स सी व्हाट इज फैमिली। फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो इसमें पैंथेरा एंड फेलिस, ये दोनों कैट फैमिलीज हैं। ये बिग कैट्स हैं, ये जो दिख बनाई है मैंने। ये स्मॉल कैट है फेलिस। दे बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, फेलिडे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एक फैमिली मैंने आपको ये नाम दी, व्हाट इज दिस नेम? यस नवरीत, व्हाट आई हैव रिटन? Felidae. फेलिडे। फेलिडे एंड कैनिडे। कैनिडे होते हैं कैनाइन्स। दे बोथ बिलोंग टू सेम ऑर्डर, कार्निवोरा। कार्निवोर्स वो होते हैं जिनके कैनाइन्स, आपको पता है कैनाइन्स क्या है? साइड पे हमारे दांत है जो कैनाइन्स, Yes, दे आर, ma'am. yes they are very strong. Earlier they were developed because जो खाते थे टीयरिंग, जब हम कच्चा मांस, जब हम फ्लेश ईटिंग थे, अर्ली मैन, जब हम कुकिंग नहीं करते थे, जब हम कुछ कल्चर एग्रीकल्चर नहीं करते थे, तो वी यूज्ड टू फीड ऑन फ्लेश। तो हमारे जो ये दांत थे साइड वाले कैनाइन्स, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट नाउ दे आर अंडर डेवलप्ड। अब अगर मैंने पूछा व्हाट इज क्लास, क्लास की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड Group of ऑर्डर्स। related order. तो एक ऑर्डर मैंने कौन सा लिखा हुआ है बोलो? Carnivora. वेरी गुड, कार्निवोरा। कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों का सेम ऑर्डर है, मैमेलिया। मैमल्स कौन होते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर मैमल्स? यस, इट्स अ चॉकलेट क्वेश्चन बच्चे, वी कीप ऑन डूइंग चॉकलेट क्वेश्चंस। अभी तो क्लासेस ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन में फ्रीक्वेंटली आप चॉकलेट विन करोगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मैमल्स? मैमल्स, वी आर ऑन मैमल्स। Okay, no worries. Mammals वो होते हैं organism which have mammary glands. Mammary glands are those glands, mammals. Is it with everyone? My voice is not audible. Yes. Just No, wait. No, it's audible. Gulin, just wait. I'll try to take out my mic one. Just wait. Gulin, is this fine? Gulin? Yes, ma'am. Okay. Okay. Mammary glands की बात हो रही है. We are all mammals because we have mammary glands. Mammary glands are those glands which
प्रोड्यूस मिल्क, मिल्किंग ग्लैंड्स को बोलते हैं. हमारे में है फंक्शनल इन फीमेल्स, नॉन फंक्शनल इन मेल्स. तो वी आर ऑल मैमल्स. ये होते हैं मैमल्स. तो अभी हम पढ़ रहे थे कार्निवोरा में प्राइमेटा दोनों क्लासेस, एक क्लास है दोनों की, मैमेलिया. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइलम? ग्रुप ऑफ रिलेटेड Group of related class. Class. क्लासेस. और एक क्लास मैंने क्या लिखा हुआ है? Mammal. Mammals. It is mammalia. तो Mammalia. mammalia, yes, MAMMALIA, mammalia, aves, reptilia. Amphibians. Very good. Reptilia, amphibians, amphibia, and Pisces. They all, Amphibia. yes, amphibians. They all belong to same phylum, which is, yes, anyone, ninth में आपने पढ़ा हुआ है, chordata. And what is the definition of kingdom? Group of related? Phylum. Group Phylum. of related Or phylum. division. Phylum. तो इसमें तो दो ही phylums बताई थी, दो ही kingdoms बताई थी, animal kingdom and plant kingdom. You can just write it down. I hope it is feasible with everyone, मतलब to look into this chart and you'll be able to write, or should I write it once again? If you can write it once Okay. again, it is Yeah. not. No worries, बच्चे, I'll do it. Don't worry. So start with me. सबसे पहले था species. It's visible. Okay, no worries, बच्चे, I'll repeat. Start writing with me. तो species में example है Panthera tigris, and I've told you as you are writing the organism's name, they should be separately underlined. Species के बाद था genus. Genus क्या होता है? Group of similar species. और इसमें 3 species थी, Panthera, yes, tigris, Panthera leo, and Panthera Leo. pardus, Panthera pardus. देखना, अभी learn भी हो जाएंगे आपको. This is given in your NCERT. I'll tell you the page number. तो आप लोगों को NCERT से भी read करना ये topic. आप साथ साथ plants की भी example लिख लो इसी में. Solanum, tuberosum, Solanum nigrum, आलू, शिमला मिर्च, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. दिस इज सोलनम. सोलनम मेलोजीना. काली मिर्च, हरी मिर्च, आलू, शिमला मिर्च, ये सब they all belong to this family which is Solanaceae. जिसके स्पेलिंग्स ना क्लियर हो, just let me know. इसको भी स्पेलिंग्स नहीं क्लियर हो या कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो, just let me know, okay? The specific name of Nigrum. हाँ, NIGRUM. हाँ, yes, anyone? Yes, I didn't get you. दोबारा बोलो बच्चे. Ma'am, I was asking for the spelling. You cleared it. Okay. तो मैं आपको स्पीशीज में तो एक एग्जांपल मैंने वैसे ही दी थी, मैंजिफेरा इंडिका की. ये सारे स्पीशीज के साथ भी हो गया. अब मैंने आपको जीनस में बताया, तो इसमें एनिमल्स का भी और फैमिली का भी, प्लांट्स का भी. तो एनिमल्स में सब ये हो रहे हैं जीनस पैंथेरा, एंड इन प्लांट्स दे हैव जीनस सोलनम. Now I'm moving to next part, that is family. Families, group of related. Genus. Genus. Okay.
Yes, genera. Very good. Genera, very good. तो इसमें एग्जाम्पल थी पेंथरा और फेलिस. They belong to same family, Felidae. और अब मैं आपको प्लांट्स के भी लिखवा रही हूँ, तो प्लांट्स का भी साथ साथ लिख लो. तो इसमें सोलनम, पिटूनिया, ये मटर का नाम है पिटूनिया, सोलनम, आलू बताया, आलू फैमिली, and Datura. Datura inoxa is again very important medicinal plant. They all belong to family Solanaceae. Solanaceae. Sorry. If you're done, can I move to the next page? Yes, ma'am. Everyone? Ma'am, can you please speak out the spelling of Solanaceae? Solanaceae. Okay, thank you, ma'am. Okay. Now coming to order. Order क्या था? Related group of families. Similar family. Similar families. देखा, अब लोगों को learn भी हो गया. Very good. Order is. और यही मुश्किल लगता है बच्चों को, लगता है ये टॉपिक तो कभी लर्न ही नहीं होगा. आपने अभी देखी भी नहीं किताब. जब आप किताब से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, you'll be very happy कि इतना इजी था ये. इसमें पिछली फैमिली थी फेलिडे और कैनाइन्स की फैमिली होती है कैनिडे. दे बोथ बिलोंग टू कार्नी. Carnivora. वेरी गुड, कार्निवोरा. शाबाश. और प्लांट्स के केस में भी लिख लो सोलनेसी. हम वही चीज जो पीछे कर रहे हैं ना, देखो वही कर रहे हैं अभी. फैमिली में मैंने 2 फैमिलीज बताई थी, फेलिडे और सोलनेसी. इन्हीं को मैंने आगे यूज कर दिया, इनके साथ ऐड कर दी. तो सोलनेसी और फेलिडे, सॉरी सोलनेसी, ये प्लांट्स के सोलनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी. They both belong to order Polymoniales. ऑर्डर के बाद क्या था बच्चों? Class. क्लास. Class. क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर Order. Order. ऑर्डर्स. ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर. और इसमें क्लास में है कार्निवोरा एंड प्राइमेटा. They both belong to same class Mammalia. No need to write about plants. क्लास के बाद आते हैं हम फाइलम पे. Can I move to next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अब हम आएंगे फाइलम पे. Phylum is group of similar Ma'am, can you classes. please show the Class. previous page? Okay, wait, Navi. Yeah.
Thank you. Okay. तो फाइलम पे फाइलम इज सिमिलर क्लासेस, इसमें है मेमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, Pisces. yes, Pisces. They all belong to, yes, Chordata. Chordata. Very good. Chordatum. Chordata. और अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हो तो प्लांट्स दे हैव मोनोकोटिलिडने एंड डाइकोटिलिडने. एंड they both were under division, क्योंकि प्लांट्स में क्या होगा, फाइलम की जगह क्या था, Division. डिवीजन. Division. So in case of plants, they are placed under division angiosperm. I guess सबको समझ आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं. प्लांट्स में हमने लिया था डिवीजन, एनिमल्स में लिया था फाइलम. और किंगडम लास्ट रह गया. किंगडम, तो किंगडम में तो there were Ma'am, only can two. you just speak out the spelling of monocot. I am Monocot. not getting it. What is Yeah. Yes, I'll repeat. Monocotyledone. MONOCOTYLE. Sorry, COTYLE DONAE. Should wait. I'll repeat. I'll write down once again. Dicotyledone के spellings हैं DICOTYLEDONAE. मोनोकोटिलिडने की स्पेलिंग है MONOCOTYLEDONAE. मोनोकोटिलिडने एंड डाइकोटिलिडने, they were placed under division angiosperms. और लास्ट रह गया आपके पास किंगडम, हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी. स्मॉलेस्ट थी स्पीशीज, हाईएस्ट है किंगडम. Highest taxonomic category, which includes kingdom Plantae and plant kingdom कह दो Animalia. Animalia. Very good. Shabash. Ma'am, but you have written below monocotyledone. Monocotyledone angiosperms. ANGIOSPERMA. Angiosperm. Okay, done. Can I move to the next topic now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I guess सभी को ये part समझ आ गया. Generally, this part is considered to be one of the toughest part.
अब now I'm going to start with the new topic, that is taxonomical aids. Taxonomical aids. एड्स से हम नाम समझते हैं कि वो बीमारी वाला एड्स है. नो, इट इज नॉट एड. अगर आपको याद हो, फर्स्ट एड में भी होता है. एड मींस हेल्प. टेक्सोनॉमी में ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हेल्प करेंगे? दैट विल बी कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके. Yes, ma'am. तो इसमें सबसे पहले टेक्सोनॉमिकल एड्स, देयर आर सम लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड्स और देयर मे बी सम नॉन लिविंग पार्ट आल्सो. Just wait, can anyone tell me? I'll just bring my NCERT. Just hold for a second. Can anyone tell me the page number where it is written taxonomical aids in your NCERT? I'm not able to find it. Ma'am, page number 11. Okay, taxonomical aids. So there are certain living or non-living tools. Just listen to me carefully, then I'll make you write down. एक आता है botanical garden. I'll make chart in the next class, but I'll just explain right now. You know what are botanical gardens? Have you ever gone to botanical garden in Chandigarh? No. It's in sector 14, Punjab University. They have maintained a garden where all the plants from different areas, different countries, they have been preserved here. Even from all over India, they have preserved certain varieties which are not present in North India or Chandigarh. They have tried to maintain those varieties also within that garden. So botanical garden is an area where living plants can be preserved artificially, and they are taken care of. They have the gardeners take special care. जैसे अगर मैंने अब बोला आपको, गोवा में बीचेस पे you must have seen date palms. जो palm trees होते हैं, they are big trees, they are huge trees, they require care, water also, moisture also. You will not find these trees in Chandigarh locally, but they are in abundance in Goa or Maharashtra. So they have preserved these trees also here in their living condition. तो जब हम living condition में preserve कर रहे हैं, they are known as botanical garden. It is a place where variety of plants are grown. And why they are grown? For us to study, to educate people, and to study their behavior also. And if the plants are dead, if they are not in living condition, and you are preserving them in files, then it is a herbarium. So herbarium is a storehouse where plants are dried and preserved for future study. Got it? So अगर आप living plants को preserve कर रहे हो, then it is botanical garden. If you are preserving dead plants, then it is herbarium. If we are preserving animals in living condition, then it is zoological parks, जिसको आप zoo बोलते हो. जैसे आपको पता है छतबीर zoo, तो zoological park, sorry, zoo, where wild animals are kept in enclosed area for scientific study. And here we protect endangered plants as endangered animals. अगर मैंने बोला रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे सुंदर टाइगर है बंगाल का, रॉयल बंगाल टाइगर पूरे वर्ल्ड में. और अगर वो बंगाल में है और मैंने यहाँ चंडीगढ़ में छतबीर जू में रखा है, तो इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो आपने आर्टिफिशियली रखा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दैट एंडेंजर्ड एनिमल, टू एजुकेट पीपल एंड फॉर रिक्रिएशन. मतलब आप जाते हो, एंजॉय करते हो, देखते हो उसकी ब्यूटी को.
कौन गया छतबीर जू रिसेंटली? अभी तो पैंडेमिक तो नहीं, 2 साल पहले. एनीवन recently visited this छतबीर जू? No. कोई भी नहीं गया आप लोगों में से? No. मुझे Ma'am, I've Ma'am, been not there. recently, but before some time. ओके ओके. तो बच्चे वहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, बिकॉज अगर मैंने बताया टाइगर, तो टाइगर इज वेरी एक्सपेंसिव. गवर्नमेंट के लिए ऊपर भी बर्डन है अगर वहां पे 2 टाइगर्स हो गए, बिकॉज दे मे रिक्वायर 10 kg ऑफ मीट पर डे. एक दिन में 10 किलो या 20 किलो मीट खा रहे हैं. दे विल नॉट बी एबल टू गिव देम, और आधे तो लोग बीच में से गायब कर लेते हैं. तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देम इन गुड कंडीशन इन दैट हैबिटेट, तो यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारे स्कूल्स ने अडॉप्ट कर लिए. किसी किसी को आइडिया है किसी के स्कूल ने अडॉप्ट किया हो? There are certain animals which have been adopted by this Sacred Heart School. काफी सारे animals हैं. St. Stephen School. तो बहुत सारे animals में आप जाओगे ना, वहाँ पे नेम प्लेट्स लगी हुई हैं. तो वो जो एनिमल्स हैं वो प्रिजर्व किए हुए हैं इन गुड कंडीशन एंड दे वर मेंटेन. क्यों क्यों अडॉप्ट करने का मतलब है कि उनके जो खर्चा है वो उठाते हैं जो लोग केयर टेकर्स हैं. मतलब जैसे अगर किसी स्कूल ने किया तो वो डेली का खर्चा एक्सपेंसिव, दे विल टेक इट फ्रॉम योर फीस. एंड और उसके बाद वो उसमें से उनकी जो डेली डाइट है, उनके डेली डॉक्टर विजिट है, वेट डॉक्टर आते हैं. तो अगर आप लिविंग कंडीशन में रख रहे हो zoological पार्क, अगर मरे हुए जानवरों को प्रिजर्व कर रहे हो किसी केमिकल में, देन इट इज म्यूजियम. तो plants and animals, when they are dried and preserved in specimen form, then it is in museum. तो कई बार इसमें आपने देखा होगा skeleton also is preserved or they may be fossilized. तो ये सारी चीजें जो हैं एनिमल्स और प्लांट्स को हम प्रिजर्व करते हैं. तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स, पाहुल बेटे, आई गेस देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड. पाहुल, okay Pahul, we are doing this topic taxonomical aid. Okay, got it bete. तो taxonomical aid क्या होता है? AIDS means help. मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट एड होता है, एड्स बीमारी में नहीं है. तो वो जो टेक्सोनॉमिकल एड मींस टेक्सोनॉमी में जो हेल्प कर रहे हैं. बोटैनिकल गार्डन मैंने आपको बता दिया. बोटैनिकल गार्डन काफी सुंदर है चंडीगढ़ का. इट्स इन सेक्टर 14, पंजाब यूनिवर्सिटी. And when I was doing my PhD from Punjab University, we were regularly visiting because botany से मैंने किया. तो I have seen many plants which were not local to this area, or maybe they are not from India also. They have been preserved here beautifully within greenhouses और open में भी. लोटस भी, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स और सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं. तो बोटैनिकल गार्डन वो एरिया होता है where living plants are preserved, they are grown, they are preserved for scientific study in order to educate people. अब मुझे स्टडी करना था, मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर पाम ट्री, मैंने अगर पाम ट्री देखना है तो वहां पे अबंडेंस में लगे हुए हैं बोटैनिकल गार्डन, बिकॉज दे रिक्वायर मोर ऑफ मॉइस्चर, मोर ऑफ वाटर. तो वहां प्रिजर्व किए हुए हैं ये प्लांट्स. इवन इफ यू गो टू दिस एयरपोर्ट रोड, you must have seen number of anyone from that Yes, ma'am. area? I have Anyone seen. okay, you have seen. And anyone from that area? No, no, no. So बच्चे वहां पे इतने सारे लगा दिए हैं. क्या ये प्लांट्स यहाँ के लोकल हैं? टेल मी. No, ma'am. No, they are not local plants. और मैंने अभी अभी बताया, being a science student, you must be understanding that as they are growing in Goa beaches या महाराष्ट्र beaches पे grow कर रहे हैं, तो they require lots and lots of moisture, lots and lots of water. और वहां से आप यहाँ लगा रहे हो, यहाँ पे पानी बहुत खींचेंगे ये. हवा का मॉइस्चर लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं. They are a burden on this area, but they have been planted in n number in the outskirt of airport road, so it is not good. But
लेट इट बी, क्योंकि अभी ये टाइम आ चुका है कि nobody is bothering about anything, not even environment, but it is need of our botanical garden. I guess सभी समझ चुके हैं कि it's an area where plants are preserved. I'll definitely get some pictures and I'll share it with you in the group. Zoological park, sorry, अगर plants dead हैं तो उनको preserve किया जाता है herbarium में. Again, this herbarium is present in botany department in Punjab University. तो वहां पे क्या किया गया, बहुत बड़ी बड़ी अलमीराज में डेड प्लांट्स को पेस्ट करके शीट्स के ऊपर प्रिजर्व किया गया. अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. और अगर एनिमल्स की बात करेंगे, जू आपने सुने में, zoological parks, जू वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर इनक्लोज्ड, जंगली जानवरों को प्रिजर्व किया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स. अगर हम बात करें डेड एनिमल्स की, उनको स्पेसिमेन की फॉर्म में रखा गया, देन इट इज म्यूजियम. तो स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले लिखो बोटानिकल गार्डन. और अब हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन के बारे में इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड. बोटानिकल गार्डन में लिखो प्लेस वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन place where variety of plants are grown for scientific study. Place where variety of plants are grown for scientific study. Botanical garden के बारे में पढ़ रहे हो. Place where variety of plants are grown living condition में for scientific study. Next point लिखना, to educate people. Students के लिए grow करते हैं. To educate Can you people. repeat the first point, ma'am? The voice was not clear. Okay, the first point was place where variety of plants are grown for scientific study. Place where variety of plants are grown for scientific study. और दूसरा पॉइंट लिखोगे टू एजुकेट पीपल. अब इसमें आपको कुछ चीजें याद करनी है. वेरी ओल्ड बोटानिकल गार्डन इन इंडिया. ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन का नाम लिखो इन इंडिया. ओल्डेस्ट, उसका नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन इन कैलकाटा, हावड़ा. हावड़ा ब्रिज सुना हुआ है आपने. कैलकाटा नहीं बोलते, अब कोलकाता बोलते हैं. इसका अब नया नाम हो चुका है रॉयल बोटानिकल गार्डन का न्यू नेम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन. और यहाँ की फेमस चीजें क्या, लिख लिया था सभी ने? यस. No, ma'am. ओके ओके ओके, लिख लो. इसका रॉयल बोटानिकल गार्डन हावड़ा, कोलकाता. और इसका नया नाम आ गया आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन.
Ma'am, we have to remember both the names. Yes. अब इसकी खासियत सुनना, कि इसमें सबसे ज्यादा इसकी खासियत है ग्रेट बनियन ट्री, फेमस फॉर, ऊपर लिख लेना, इट इज फेमस फॉर ग्रेट बनियन ट्री। जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस bengalensis. Ficus bengalensis. It is 250 year old, and it has 2800 prop roots. I'll tell you what are prop roots. 250 साल पुराना है और इतना बड़ा पेड़ है, just it has branches which are spread up to 1 kilometer, मतलब नीचे ऐसे ऐसे है अब पेड़ की ब्रांचेस, और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कौन सी इसमें से रूट है और कौन सी मेन ब्रांच है, इसीलिए किसी को कट नहीं किया गया, क्योंकि अगर मेन ब्रांच कट हो गई तो ये पेड़ मर जाएगा। 14,500 स्क्वायर मीटर लॉन्ग है ये। 2800, ये जो नीचे गिर रही है ना रूट्स, दे आर 2800। Isn't this amazing? Great banyan tree, which is 250 years old. Wow. Just imagine a single tree with 2800 roots which are coming down. और इसी में, can I move to next page? No, I'll write here only. इसी में एक और अमेजिंग चीज है, विक्टोरिया अमेजोनिका, which is water lily. एक्वाटिक प्लांट है, एक छोटा सा, मतलब प्लांट्स ये छोटे छोटे से होते हैं, बट हेयर इट इज 2 to 3 मीटर। एक पौधा जो है, एक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, इट इज 2 to 3 मीटर। आपके टेबल, आपका जो डाइनिंग टेबल है उससे उतना और उससे भी बड़ा। तो ये इतने बड़े बड़े इसमें चीजें हैं बोटानिकल गार्डन में। एंड देयर इज अनदर थिंग, इसका नाम लिखो, पैंडिनस, which has multiple root cap with stilt roots. ये टेंट लाइक रूट्स होती हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट आर स्टिल्ट रूट्स। आप सिर्फ अभी ये याद रखो, आपने अभी पढ़ा रॉयल बोटानिकल गार्डन जो हावड़ा में है, कोलकाता में, वहां की आपने फेमस चीजें देखी। ग्रेट बनियन ट्री जो 250 साल पुराना है, 2800 रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स। फाइकस बेंगलेंसिस उसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा विक्टोरिया अमेजोनिका जो वाटर लिली है और 2 से 3 मीटर लंबी। और लास्ट मैंने आपको पैंडिनस बताया जो मल्टीपल रूट कैप, रूट कैप सिर्फ एक होती है, सिर्फ पैंडिनस है जिसमें। और वर्ल्ड में, कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है, दैट इज, इसके बाद नाम पड़ा था रॉयल बोटानिकल के लिए, रॉयल बोटानिकल गार्डन इन क्यू, इंग्लैंड। इसमें एक शहर है, एक बोटानिकल गार्डन। अभी तक तो आपने सुना कि 1-1.5 किलोमीटर तक का ही है। इसमें इंग्लैंड में जो क्यू में है रॉयल बोटानिकल गार्डन, वो एक पूरा शहर है, एक पूरी सिटी है, जिसमें उन्होंने हर कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। मतलब इंग्लैंड में वहाँ एक छोटा सा एरिया बनाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिया की प्लांटेशन, यहाँ का क्लाइमेट, उन्होंने टेम्परेचर कंट्रोलर से वहाँ आर्टिफिशियली गर्मी ठंड सब कुछ मेंटेन किया हुआ। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू विजिट। अगर आप लोगों का इंग्लैंड चक्कर लगता है तो मस्ट टू विजिट प्लेस है रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। Clear everyone?
Ma'am, it is the oldest botanical garden in whole world. Yes, it is the largest botanical garden in the world. Largest, biggest. Okay. Okay, इंडिया ma'am. में हाँ इंडिया में है हावड़ा में कोलकाता में और वर्ल्ड में क्यू इंग्लैंड में. So we'll discuss the rest part in the next class. I hope everyone is clear with these topics. Any query, just let me know. Yes. Ma'am, जो आप